بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کے لیے کراچی میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا دوسرا روز اختتام پذیر ہو گیا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے قومی کی 22 اور صوبائی اسمبلی کی 47 نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کیے۔ ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت آزاد امیدواروں نے کاغذات جمع کرا دیے۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی دوسرے روز مجموعی طور پر ضلع کورنگی میں 4 صوبائی اسمبلی کے 22 اور قومی اسمبلی کے لیے 9 کاغذات نامزدگی امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے۔ ملیر میں 6 صوبائی اسمبلی کے حلقے پی ایس 84, 85, 86, 87, 88, 89 کے لیے 93 فارم اور قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 229, 230 اور 231 کے لیے 31 فارم امیدواروں نے وصول کیے، جبکہ 3 فارم جمع ہوئے۔ فارم وصول کنندہ امیدواروں کا کہنا تھا کہ شہر کے مسائل کو حل کریں گے اور اس کی رونقیں بحال کریں گے۔ ہیلتھ میں کام ہوا ہے، کسی صوبے میں پورے ملک میں کام نہیں ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں، آپ کا پانی کا منصوبہ، کچرے کا معاملہ تھا، روز شور کرتے تھے پانی میں آپ کو بتاؤں یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے، ابھی ہمارے میئر شپ کے ابھی ٹائم بھی پورا نہیں ہے، اب تو 2-4 مہینے ہوئے ہیں۔ آپ جب 5 سال پورے ہوں گے پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ حقیقی تبدیلی کراچی میں کیسے ہوتی ہے۔ ملیر گڈھا کو نظر انداز کیا گیا ہے، جو بھی آتا ہے اپنی اسی حساب میں رہ جاتا ہے، تو ہمارے جو بدقسمتی ہے کہ ہم ہمیشہ پانی میں ہی ڈوبی رہتے ہیں، نہ روڈوں کا حال ہے، نہ رستوں کا حال ہے، نہ سیوریج کا سسٹم ہے، یہ نل بٹا نل گڈھا۔ یہ ہماری نئی پارٹی ہے، انشاءاللہ ہر کام، ہر چیز، ہر طریقے سے ایک اس طرح اتریں گے میدان میں کہ یہ پاکستان کا انشاءاللہ ہم کو اللہ سے امید ہے، پھر یہ اپنی عوام سے امید ہے کہ یہ کایا ہی پلٹ دیں گے۔ کراچی کی عوام کے لیے ہمارے ایک دم جو بھی ہے، ہمارے سب محب وطن جتنی بھی مثال کراچی کی عوام ہے، انشاءاللہ ان کی پورے امنگوں پہ اتریں گے۔ ضلع جنوبی میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشست پر دوسرے روز 177 کاغذات نامزدگی جاری کیے گئے، جبکہ 41 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ضلع وسطی میں صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے 33 کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے، جبکہ قومی اسمبلی کی 4 نشستوں کے لیے 16 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ضلع غربی میں صوبائی اسمبلی کی 6 نشستوں کے لیے 83 اور قومی اسمبلی کی 3 نشستوں کے لیے 18 فارم امیدواروں نے جمع کروا دیے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے دوسرے دن مختلف سیاسی جماعتوں کے 50 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ عاجز جمالی رپورٹ کریں گے۔ عام انتخابات مخصوص نشستوں کے لیے سیاسی جماعتیں متحرک۔ کراچی میں صوبائی الیکشن کمشنر شریف اللہ کے آفس میں صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک 50 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا لیے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جنہوں نے گراس روٹ لیول سے ان خواتین کو لیا ہے جو کہ ٹرو مینس میں خواتین کی نمائندگی کرتی ہیں، اور ان کا کلاس چاہے وہ مڈل کلاس ہو، چاہے وہ لوور مڈل کلاس ہو، چاہے وہ ایلیٹ کلاس ہو، چاہے وہ سیاسی شعور رکھتی ہوں، ان کو ہمیشہ انہوں نے پروموٹ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور دونوں فارم جمع کرا رہی ہوں، نیشنل اسمبلی بھی اور پروونشل اسمبلی بھی۔ پارٹی کی ڈسکریشن پہ ہے کہ وہ کہاں سمجھتی ہے کہ وی کین بیٹر سرو دا پارٹی اینڈ بیٹر سرو دا کنٹری۔ کاغذات جمع کرانے والے امیدواروں میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ نون کے امیدوار شامل تھے۔ امیدواروں کا کہنا تھا کہ وہ اپنی پارٹی کی ہدایات پر کاغذات جمع کروا رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ ریزرو سیٹ کے لیے کراچی آئے ہیں، استحکام پیپلز پاکستان پارٹی۔ انشاءاللہ ہوپ فار دی بیسٹ، امید ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی ہی جیتے گی۔ میں اس دفعہ پتنگ سے حصہ لے رہی ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ عوام کی پہلی خواہش جو ہے وہ پتنگ ہے، تو اس دفعہ جو ہے پیپلز پارٹی کو تھوڑا ٹف ٹائم دیں گے۔ سندھ میں صوبائی اسمبلی کے لیے خواتین نشستوں کی تعداد 29 اور اقلیتی نشستوں کی تعداد 9 ہے۔ مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات جمعہ کے روز تک جمع کروائے جائیں گے اور سیاسی پارٹیوں کو امیدواروں کی ترجیحی فہرست بھی اسی روز جمع کرانی ہوگی۔ کیمرہ مین عبد المنان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ عام انتخابات کے لیے ڈسٹرکٹ کیماڑی میں بھی دوسرے روز بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری رہا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات کے لیے ڈسٹرکٹ کیماڑی میں دوسرے روز بھی گہما گہمی رہی۔ امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری رہا۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں نے این اے 242 اور 43 سمیت پی ایس 111 سے 115 تک کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ این اے 242 سے رضوان خان
खानजादा और 243 से शुजात एडवोकेट ने कागजात जमा कराए। साजिद न्याजी ने PS 111, असमतुल्ला न्याजी ने PS 112, हसनैन अली चौहान एडवोकेट ने PS 113, शब्बीर कुरैशी ने PS 114 और शान नवाज जदून ने PS 115 से कागजात जमा कराए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद इब्राहिम बलोच ने PS 113 से कागजात नामजदगी जमा कराए। इनका कहना था कि वो कामयाब होकर आवाम की खिदमत करेंगे। मुझे पीपल्स पार्टी ने इंटरव्यू लिया, सब कुछ लिया, और भी दोस्तों ने अप्लाई किया। अभी तक टिकट का अनाउंस नहीं हुआ। जैसे चेयरमैन साहब इसके अप्रूवल देंगे, अनाउंस होगा, हमें एहतियातन एडवांस में अपना नॉमिनेशन वगैरह दाखिल करें। इस उम्मीद पे मैं भी पार्टी मुझे टिकट दे और मैं वहाँ पर आवाम की खिदमत करूँ पीपल्स पार्टी के प्लेट पर। जमीयत उलमा पाकिस्तान नौरानी ग्रुप के उम्मीदवार भी मैदान में आ गए। मोहम्मद हबीबुल्लाह खान कादरी ने NA 242 और PS 111 के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए, जिनका कहना था कि इलाके में पानी के दरीना मसाइल हैं। कामयाब हुए तो सबसे पहले ये हल करेंगे। सीधा मसाइल ये हैं कि जनाब कौम के लिए बिजली है, पानी है, सीवरेज का निज़ाम है, सफाई वगैरह है, ये अभी तक कोई इसके ऊपर अमल नहीं हुआ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अगर हमारे को मौका दिया तो हम पहले तरजीह इसको देंगे जो आवाम की ज़रूरियात है। पानी का 24 घंटे बहाल होना, बिजली का 24 घंटे बहाल होना, सड़कों की गलियों की सफाई का होना, समझे ना, और लोड शेडिंग का ख़त्म होना, हम इसको पहले तरजीह देंगे क्योंकि आवाम के मसाइल नहीं है। PS 113 के लिए MQM के अब्दुल हसीब और अवामी नेशनल पार्टी के हाजी इसरारुद्दीन ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। आम इंतखाबात के इब्तदाई मरहले में कागजात नामजदगी फॉर्म हासिल और जमा कराने की मोहलत के दूसरे रोज़ सियासी माहौल गर्म रहा। ज़िला गरबी की कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों का अहवाल बता रहे हैं रिजवान अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में नामजदगी फॉर्म के हवाले से दूसरे रोज सुबह के औकात में सरगर्मियां मान रहीं, मगर दोपहर के बाद उम्मीदवारों की आमद हुई और उनके सपोर्टर्स ने इलेक्शन ऑफिस में हलचल मचा दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाफिज अब्दुल बर बोले, पार्टी ने टिकट दिया तो आजमाइश पर पूरा उतरेंगे। काम को देखते हुए चूज करती है पार्टी की आदत, किसी की सिफारिश या किसी उसके ऊपर जो है वो लोगों को जो है वो टिकट्स नहीं देती। और यहाँ पर मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है, तो आज हम यहाँ पर आए हैं कि और नॉमिनेशन हमने जमा की है। मुझे इंशाल्लाह पूरी 100% उम्मीद है कि पार्टी जो है वो मुझे खिदमत का मौका देगी अवाम की। ANP, PTI और MQM पाकिस्तान के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी फॉर्म जमा कराने की मोहलत बढ़ाने का मुतालबा किया। अगर एक डेट थोड़ा 1-2 दिन बढ़ जाए तो अच्छा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो थोड़ा लेट आते हैं, तो 1-2 दिन बढ़ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इनको डेट बढ़ाना चाहिए, सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त इंतजाम आप देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट जमा कराते हैं उसके लिए सहूलियत कम है, कोई सहूलियत नहीं है फिलहाल तो ये है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के अमले की शिकायत करते दिखाई दिए। मैं आया था फॉर्म जमा कराने, आर साहब थोड़ा लेट आए हैं लेकिन उन्होंने माजरत की है। उनकी कोई मीटिंग थी इलेक्शन कमीशन के साथ, तो इसके वजह से वो डिले हो गए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा कि MQM पाकिस्तान किसी से बाकायदा इल्हाक करने के बजाय सीट एडजस्टमेंट करेगी। हमने किसी तरह कोई अलायंस नहीं किया। हमारी ख्वाहिश ये है कि सीट एडजस्टमेंट पे जाया जाए। और जैसे कहा कल मुस्तफा कमाल भाई ने भी कहा था कि जहाँ पर जिनकी फॉलोअर मौजूद है, जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, वहाँ पे वो सियासी पार्टी के उम्मीदवार लड़ेगा। नामजदगी फॉर्म के मरहले के दूसरे रोज होने वाली गहमा गहमी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कराची का सर्द मौसम सियासी तौर पर गर्म होने जा रहा है। कैमरामैन गुलफाम शेख के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची के कौमी असम्बली हल्का NA 237 का मार्का सर करने के लिए मरियम नवाज भी मैदान में उतर आईं। शहर के दिगर हलकों की तरह इस इलाके में भी मसाइल के अंबार लगे हैं। टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का नाकिस निज़ाम और पानी, बिजली, गैस समेत दिगर मसाइल आज भी यहाँ से कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुँह चढ़ा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून सदर मरियम नवाज यहाँ से जीत पाएंगी या नहीं। कराची में आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर कायद में अहम सीटें जीतने के लिए नून लीग ने भी पंजे गाड़ ली। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून सदर मरियम नवाज ने कौमी असम्बली हल्का NA 237 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। ताहम ये वो इलाका है जहां पिछले अदवार में अहम शख्सियात ने कामयाबी जरूर हासिल की, लेकिन इलाके के मसाइल आज हल न हुए। लाइन्स एरिया, महमूदाबाद सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, बलोच कॉलोनी, चनेसर गोट, आजम बस्ती, अख्तर कॉलोनी में मसाइल के अंबार लगे हैं। यहाँ पे मसले वही सेवरेज के
कचरे हैं, गलियों सारी ख़राब है, कचरा यहाँ नहीं उठता, यहाँ स्वीपर कभी नहीं आता, सफाइयाँ यहाँ नहीं होती। लोग अपनी मदद आपके तहत ही जो सफाई कर लेते हैं, जो काम कर लेते हैं, होता है। कचरे का इतना ढेर है हमारे इलाके में कि इससे मच्छर का फकदान है, लिहाजा खुदारा आप लोग इसके ऊपर कोई नज़रसानी करें। टूटी सड़कें भी हैं और ये गली की हालत भी बहुत ख़राब है, हर जगह गटर का पानी और सेवरेज का निज़ाम सही नहीं है। टूटी फूटी सड़कें, खुले गटर और जगह जगह गंदगी के ढेर मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। गटर के ढक्कन जनाब लगे हुए भी हैं कुछ, यानी कि आए दिन कचरा पड़ा रहता है, और दूसरा पानी के गटर भर जाते हैं। इधर आगे का 6 महीने से साल हो गया ये हाल है कि बच्चे नहीं चल सकते, घरों के अंदर पानी भर गया है, गटर इतने भरे हुए, रास्ता बंद हो गया है। हल्के के मकीन आज भी पानी, बिजली, गैस की अदम फरामी की शिकायत करते दिखाई दिए। देखिए, बल्दियाती मसाइल तो आपके सामने हल है, क्योंकि कितनी हुकूमतें आई लेकिन किसी ने भी कोई इस एरिया में तवज्जो नहीं दी बिल्कुल, क्योंकि आते ही नहीं है, खाली सिर्फ अपना एक दफ़ा शक्ल दिखाई और उसके बाद गायब हो जाते हैं। लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, ये सिलसिला आज भी सुबह से लाइट गई हुई है, अभी तक कंफर्म नहीं कब आएगी लाइट। एक तरफ शहर कायद मसाइलिस्तान बना हुआ है, दूसरी तरफ मरियम नवाज हल्का NH 237 से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, लेकिन देखना ये होगा कि मसाइल में फंसे हल्के के अवाम किसको वोट देंगे। MKM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार की साहबजादी पिया घर सधार गईं। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल, नसरीन जलील ने शिरकत की। फारूक सत्तार की साहबजादी की शादी की तकरीब में निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद न्याज, चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराइन, साबिक CPLC चीफ अहमद चनाय समेत पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और सुन्नी तहरीक के रहनुमाओं ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और नौबियाता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अब आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने औरंगी टाउन रहमान बाबा क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। औरंगी टाउन नंबर 4 में क्रिकेट खेलने के शौकीन अफराद की किस्मत जाग उठी। मेयर कराची ने रहमान बाबा क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि MKM ने सिर्फ चाइना कटिंग की, पीपल्स पार्टी पार्क्स और ग्राउंड को आबाद कर रही है। हमारा सिर्फ वज़ीर आला नहीं, वज़ीर आज़म भी होगा। अब की बार आपको चाइना कटिंग होते हुए नजर नहीं आ रही, अब की बार हमारे बाग बहाल होते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे हमारे पार्क्स, प्लेग्राउंड्स बहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। आज मेयर पीपल्स पार्टी का है, आइंदा चंद हफ्तों में इलेक्शन होने, वजीर आला भी पीपल्स पार्टी का होगा, वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी के इलाकाई ओहदेदार और ग्राउंड इंतजामिया का कहना था, पार्टी और मेयर कराची के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बच्चों के लिए ग्राउंड आबाद किया। आज मेयर कराची ने आके इफ्तिदा किया, हमें खुशी है सबसे ज्यादा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस इलाके के अंदर एक बेहतरीन अंदाज में काम कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक गुलदस्ता है इस पाकिस्तान के अंदर। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी कायदीन का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आज रहमान बाबा स्टेडियम में मौजूद हैं, जो गुज़श्ता कई सालों से खंडरात का मंजर पेश कर रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने और ख़ुसूसन हमारे मोहल्ला वेलफेयर कमेटी के सदर अली अफसर तनवीर साहब की काविशों से, उनकी कोशिशों से, उनकी मेहनत से आज ये ग्राउंड बहुत अच्छी हालत में हमें मिला है। इंशाअल्लाह यहाँ से जो बच्चे खेल कर निकलेंगे वो मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। मेयर कराची ने औरंगी टाउन की आवाम को पानी का मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। कहा कि पूरे कराची में आवाम के मसाइल हल करने के लिए एक कदम आगे रहूंगा। सरपरस्त आला और सरबराह पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप फराजुर रहमान ने अपने ओहदे से इस्तीफा वापस ले लिया। पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के बोर्ड मेंबरान ने फराजुर रहमान को मुलाकात के बाद राज़ी कर लिया, जिस पर फराजुर रहमान ने कोर कमेटी की हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया। फराजुर रहमान से मुलाकात करने वालों में पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के सदर नासिर शेख, जनरल सेक्रेटरी अली अर्श खान, फाइनेंस सेक्रेटरी अब्दुल वहाब ईदी, मोहम्मद साजिद, काशिफ अली शेख, खुरम अनीस और दीगर मेंबरान शामिल थे। गुज़श्ता रोज़ फराजुर रहमान ने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर काटी की सदारत और पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की सरबराही से इस्तीफ़े दे दिए थे। गुज्जर, औरंगी और कोरंगी नाला मुतासरीन को मुआवजे और मुतबादिल जगह की फराहमी का केस। चीफ सेक्रेटरी सिंध और कमिश्नर कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पेश हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कोरंगी औरंगी और गुज्जर नाला केस में मुतासरीन को मुआवजा और मुतबादिल जगह फराम न करने से मुतालिक केस की समाअत। चीफ सेक्रेटरी सिंध और कमिश्नर कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पेश हुए। सेक्रेटरी ने बताया कि हम ये मामला काबीना में ले जाएंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि आधे कराची को गोट बना दिया गया। रिमार्क्स दिए कि काबीना ये मामला नहीं देख सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि बहुत सारे मुतासरीन हैं, अदालत एक तजावीज़ पर खुद ही फैसला कर ले। अदालत ने मुतबादिल घरों की फराहमी के लिए दोनों तजावीज़ पर गौर करके मामला हल करने से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सूबाई हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को दिए गए 2 ऑप्शंस पर मुशावरत के लिए मोहलत देने की हिदायत कर दी। साथ ही 15 रोज में हुक्म की उबूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वाब ने कहा कि हुकूमत को 15 दिन का टाइम दिया है, हुकूमत फैसला करेगी। हुकूमत काम करती है आवाम के फलाह बहबूद के लिए और कोशिश करती है कि जो भी वसाइल हों वो आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल किए जा सकें। जो अहकामात थे अदालत के उसी कंप्लायंस आज उन्होंने जिक्र कर दिया है। एक एस्पेक्ट रहता है जिसके लिए उन अफेक्टिव को ख़ुद बताना था कि आया उनको ऑप्शन ए चाहिए ऑप्शन बी चाहिए, तो उन्होंने कह दिया कि हुकूमत की मर्जी अब जो फैसला करे। मेरे ख्याल में 15 दिन का टाइम दिया है, हुकूमत फैसला कर लेगी। अदालत के बाहर कोरंगी औरंगी और गुज्जर नाला के मुतासरीन ने अपने हक के लिए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने घर के बदले घर दो वरना कुर्सी छोड़ दो के नारे भी लगाए। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि हमारी छतें छीन ली गई और अभी तक मुआवजा अदा नहीं किया गया और न ही जगह फराम की गई। मुतासरीन का कहना था कि हम इंसाफ की उम्मीद लिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं, अदालत इंसाफ फराहम करे। कराची में बेटा ही बाप का दुश्मन बन गया। जमीन पर कब्जा करने के लिए बेटे ने 65 साला बाप को घर से निकाल दिया। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। शहर कायद में संदिल बेटे ने अपने बाप को घर से निकाल दिया। औरंगी टाउन के रिहायशी 65 साला बुजुर्ग शहरी हजारा खान अपने ही बेटे के खिलाफ अदालत पहुंच गया। शहरी ने अदालत में अपने बड़े बेटे के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार कहते हैं बेटे ने मेरे ही घर पे कब्जा करके मुझे निकाल दिया है और यहाँ पे मैंने अपना कारोबार किया था और कारोबार में ये कारोबार मेरा है जो अभी मेरा बड़ा बेटा कब्जा करके बैठा हुआ है। मेरा ये नाफरमान हुआ बेटा। उसके बाद में मैंने जगह का बोला भाई जगह खाली करो, अब तेरे मुझे मैं आपको बेदखल करता हूँ, तो इसने फिर मेरे को बंद कमरे में मार पीट के। दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट अब्दुल फतेह चांडियो ने कहा हमने पेरेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दरख्वास्त दायर कर दी है। मुलजिम ने अपने बाप पर तशद्दुद भी किया है जिसके शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। पिटीशन फाइल किए। अभी ये पेरेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का जो एक ऑर्डिनेंस बिल आया हुआ था उसके तहत हमने इनके जो है वो पिटीशन फाइल किए और जो है इसके अंदर जो है अभी केस की फर्दर जो है इसमें वो सुनवाई होगी। और इसके अंदर दूसरा हमने ये भी कहा है कि जो इनको जो मारा है उनके मेडिकल भी हमारे पास मौजूद है और जिसकी वजह से इनका दांत टूटा है वो भी हमारे पास है, वो चीज़ें मौजूद। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि बेटे से तहफ़्फ़ुज़ फराम करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तालिब इल्मों को आखिरकार खुशखबरी मिल गई। कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। सैयद जुबैर राशिद रिपोर्ट करेंगे। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मातहत चलने वाले मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की बुनियाद 1991 में रखी गई थी। कॉलेज अंडर ग्रेजुएट सतह पर MBBS और BDS प्रोग्राम पेश करता है जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से मंजूर शुदा है, जबकि KMDC कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान जामा कराची के साथ मिलकर तिब्बियात और दान साजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी जारी करता है। मेयर कराची ने कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तलबा को नवीद सुना दी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी शोबा अबलाग आमा की जानिब से छठी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। नमरा रियासत रिपोर्ट करेंगी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम छठी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों समेत गैर मुल्की जामियात के असातिज़ा की शिरकत। स्टेट ऑफ द मीडिया के मौजू पर मुनक़िदा छठी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस 4 नशिस्तों पर मुश्तमिल रही, जिसमें जामिया वफाकी उर्दू के असातिज़ा समेत
غیر ملکی جامعات کے اساتذہ نے بھی بطور ویڈیو لنک شرکت کی اور طلبہ کو موجودہ دور کی صحافت پر آگاہی دی۔ کانفرنس میں شریک سینئر صحافی مظہر عباس اور فہیم صدیقی نے الیکٹرانک صحافت کے مستقبل پر سیر حاصل گفتگو کی۔ ہم یہ جو تین چیزیں ہیں کہ انفارمیشن ٹو می از دا کی، اور انفارم دا پیپل کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سچ بتائیں۔ ایک چیز سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے آنے سے ہو گئی ہے کہ یو کین ناٹ ہائیڈ اینی تھنگ۔ ڈیجیٹل میڈیا اپنی جگہ بنا چکا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے انکار۔ ڈیجیٹل میڈیا کے نتیجے میں جو ہے آج اگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو خبریں آپ کو الیکٹرانک میڈیا پہ ملتی ہیں وہ مرہون منت ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے۔ ڈیجیٹل میڈیا پہ آنے کے بعد، سوشل میڈیا پر آنے کے بعد وہ خبریں جو ہیں وہ پاکستان کا نیشنل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا جو ہے ان خبروں کو اٹھا رہا ہوتا ہے۔ چھٹی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کرنے والے مہمانوں کو شیلڈز بھی پیش کی گئی۔ کیمرہ مین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ نمرہ ریاست سٹی 21۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں 7واں پاکستان ایکسیلنس ایوارڈ کی تقریب۔ وفاقی وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت مدد علی سندھی نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات جانیں گے سید زبیر راشد سے جو اس وقت ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں کراچی کے نجی ہوٹل میں موجود ہوں اور وفاقی وزیر تعلیم مدد علی سندھی اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ آج ایک ایکسلنس ایوارڈ کی تقریب منعقد ہوئی ہے اور اب دیگر شعبہ جات میں، مطلب مختلف شعبہ جات میں بہترین کارکردگی جو ہے اس کا مظاہرہ کرنے والے افراد کو جو ہے آج ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ مدد علی سندھی نے جو ہے ان افراد میں جو ہے ایوارڈ تقسیم کی، آپ سے ان کی بات کراتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ مجھے بتائیے گا کہ آج آپ نے جو ہے یہاں پر بے شمار ایوارڈز بانٹے، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی، کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے تو پہلے میں 7th پاکستان ایکسیلنس ایوارڈ دینے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ایوارڈ دے رہے ہیں اور زندگی میں جنہوں نے بڑا کام کیا ہے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں۔ یہ ایک اچھی روایت ہے اور جو معاشرے ترقی یافتہ ہیں ان میں ایسے کام ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے کہ تعریف کم ہوتی ہے، تنقید زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کو یا زندگی میں ہی ایوارڈ سے نوازنا ایک اچھی بات ہے۔ اور آج میں نے اس موقع پر یہ بات بھی کہی ہے کہ تعلیم کا شعبہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ میں تمام سیاسی پارٹیوں کو گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ انتخاب آنے والے ہیں، عوام کو کہا جائے کہ وہ 3 شعبے اکنامی، صحت، پینے کا پانی اور تعلیم کو اولویت دیں اور اگلے 5 سال تعلیم کے لیے وقف کریں، کیونکہ تعلیم کے سوا پاکستان میں ترقی کا اور کوئی راستہ نہیں۔ تعلیم کے سوا پاکستان میں ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مدد علی سندھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ جی